Hello.
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपने ना गलती से स्टैट्स के ग्रुप में आपने कैलकुलस की आईडी डाल दी है। कैलकुलस की आईडी डाल दी है। हाँ जी, जो हमारा स्टैट्स की क्लास होती है ना संडे वाली, आपने हाँ, वहाँ पे उस पे डाल दी कैलकुलस की मैंने। मीटिंग। जी जी, बच्चे अच्छा वेट कर अच्छा। रहे हैं सारे। अच्छा अच्छा। इसमें इसका मतलब इसमें नहीं डाली मैंने, कैलकुलस में। नहीं नहीं, जी जी, अच्छा बच्चे अच्छा वेट अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, कैलकुलस में डाल।
Okay, students, we start our meeting. You please pass on the meeting ID to the other classmates. Pass on the meeting ID to the other classmates, because I think I share this with the probability. I share the ID with the probability students. So you please share with your classmates. So we are starting. Last time we learned. Last time we did definite integrals. Last time we did the definite integrals. So the application of the definite integral, first of all, we find the area. First of all, we find the area. Suppose we have a line. Application of definite integral. Applications of definite integrals. So we find the area. The first of all, the area. The simple term is straight line y is equal to x. This is the equation of a straight line which is passing through the origin. This is just like that. This is the x-axis. This is the y-axis. And that's the origin. This is a straight line. Y is equal to x. This is a straight line. Y is equal to x. We have to find the area under this line from 0 to 4, suppose, up to here. We will find the area under the line y is equal to x from 0 to 4. So that will be the area. I draw a line. So this will be the area.
So what will we do? We will take the integration of this term and we'll put the 0 to 4, the limits of the integration. So area will be equal to y is equal to x from 0 to 4 with respect to x. This will be the area. The function, the derivative of integration of the function, and we put the limits. If we are finding from 0 to 4, we write 0 to 4. Take the integration. What is the integration of x? It will be x square upon 2. And indefinite integer we do not put c. And then we put the limit 0 to 4. So first we will write 4, the upper limit 4 square upon 2 minus the lower limit 0 square upon 2. Then the lower limit 0 square upon 2 and the difference. The answer will become 16 upon 2. The answer is 8. So the area under y is equal to x from 0 to 4 will be 8. In this way, we will find the area under the curve at the x-axis from to fixed point A to B. I think you have understood. If you have any question, you may raise your hand. I will unmute and ask the question. If you have any question, you may raise your hand. This is the area. It means the area. सर उर्दू में बात कर ले सर। वैसे ही माइक थोड़ा अजीब सा है तो सर समझ नहीं आ रहा। अब आवाज समझ नहीं आ रही आपकी, मतलब कि समझ में नहीं आ रही। यस सर, माइक थोड़ा करीब कर लें। आ रही है? यस सर, अब सही है। अब आ रही है भाई? यस सर, अब सही है, अब सही है। सर ये जो आपने लिमिट लगाया इसके अब आ रही है बेटा? शोएब जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। मोहम्मद अजहर आ रही है आवाजें? जी आ रही है, आ रही है। अब आ रही है आवाज कि नहीं आ रही? सर आ रही है। आपको हमारी आ रही नहीं आ रही? जी हाँ भाई शोएब। सर ये आपने लिमिट लगाया था 4 टेंड्स टू 0। सर ये इसके बाद वाला आप दोबारा बता देंगे? अब आ रही है बेटा आवाज? जी सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? अभी नहीं आ रही आपकी आवाज। पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही। सर आपको हमारी आवाज आ रही है? अब आ रही है। आ रही है मेरी आवाज? म्यूट हो गए। सर आपने वो 4 टेंड्स टू 0 करा हुआ है ना, लिमिट लगाई हुई है। तो सर वो 0 to 4 सर वो एक दफा और बता दें कि वो नीचे ओपन कैसे किया उसको। फंक्शन ऑफ x, उसको हमने इंटीग्रेट कर लिया। लिमिट 0 से 4 तक लगा रहे थे, अपने एरिया निकाल रहे 0 से 4 तक, तो उससे 0 से 4 तक हमने लिमिट लगा दी, उसको इंटीग्रेट किया x को, आंसर हुआ x स्क्वायर अपॉन 2।
उसमें जी। 0 से 4 लिमिट लगा दी, पहले 4 लगा दी, ये 4 स्क्वायर अपॉन 2 8 आ गया, और फिर लोअर लिमिट लगा दी 0, 0 स्क्वायर अपॉन 2 विल बी 0। अच्छा 4 पे अलग लिमिट लगी, 0 पे अलग लगी, और अलग अलग लेंगे ना, डेफिनेट इंटीग्रल उसमें पढ़ा नहीं था पहले लास्ट क्लास में, उसको यूज सर करें पढ़ा ना था बेटा। वो। सही है लास्ट सर। क्लास में जब हमने पढ़ा था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी की एप्लीकेशन है। पहले हमने सिंपल लिमिट पढ़ा था, अब वो है क्या जी लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रल है क्या, एक्चुअली एरिया है। और सही किसका सही सर। इस्तेमाल करेंगे, फिलहाल एरिया का बता रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। डेफिनेट इंटीग्रल का ये इस्तेमाल है, हाउ टू फाइंड द एरिया। तो उसका तो जो इंटीग्रेट कर लेंगे, सिंपल उसको लिमिट लगा देंगे डेफिनेट इंटीग्रल, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। मैंने आपको एक मिसाल दी है, अब और क्वेश्चन करते हैं। I'm giving you another example. The area of the region, find the area in the given question. X-axis, y-axis, y is equal to under root x. Y is equal to under root x. Find the area from 0 to 4. From 0 to 4 under the curve at the x-axis. या 0 है x की वैल्यू, यहाँ कहीं 4 होगी। हमने इसका एरिया निकालना है यहाँ से यहाँ तक का under the curve at the x-axis. This area is to be found. We calculate this area. So we take the derivative and put the limit 0 to 4. Area will become 0 to 4
and the function is under root x. X is to power 1 over 2 with respect to x. Find the integration. X is to power 1 over 2, x is to power 3 over 2 upon 3 over 2, and from 0 to 4. From 0 to 4. It will become here area will become 2 over 3 x is to power 3 over 2 from 0 to 4. From 0 to 4. It will become 2 over 3 constant है. पहले x की वैल्यू 4 रखेंगे. 4 is to power 3 over 2. फिर पाई का 0 रख देंगे. 0 is to power 3 over 2. सॉल्व कर लेंगे. 2 over 3. 2 is to power 3 over 2. ये हो जाएगा 8 minus 0. 2 over 3 into 8. 16 upon 3. This is the area. 16 upon 3 is the area. तो अगर इसका क्या हमने एरिया निकाल लिया 0 to 4 हमने इसका इंटीग्रेट किया x अंडर रूट x का मतलब x to power 1 over 2 इसको हमने इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेट करने के बाद हमने इसको इंटीग्रेट किया 0 to x to power 1 over 2 को इंटीग्रेट करने के बाद उसको 0 to 4 जो लिमिट लगा दिया. तो x to power 1 over 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा. इसके बाद ऐड कर देंगे 3 over 2 और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे 3 over 2. So that will become x to power 3 over 2 whole upon 3 over 2. 0 to 4. ये 3 over 2 ऊपर जाएगा 2 over 3 हो जाएगा. 2 over 3 x to power 3 over 2. अब 2 over 3 बाहर आ गया. x to power 3 over 2 पर हमने पहले 4 लिख दिया. 4 का लिमिट लगाया 4 to power 3 over 2 और फिर 0 लिख दिया. लोअर लिमिट लगाया 0 to power 3 over 2. 4 is to power 3 over 2, 4 का 1 over 2 पावर ली तो 2 आ गया. 2 की पावर 3 ली तो 8 आ गया. So 8 minus 0, the answer will become 16 over 3. So answer will become 16 over 3. Understood? If you have any question, raise your hand. क्वेश्चन हो तो बेटा हाथ उठाए. मैं आपका म्यूट करके मालूम कर. तो ये मैंने आपको एग्जाम दे दिया. अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं. एक्सरसाइज है हमारी वही एक्सरसाइज मेरे ख्याल से 5.6. एक्सरसाइज 5.6. एक्सरसाइज 5.6. एक्सरसाइज 5.6. एरिया के क्वेश्चन कर रहे हैं. एरिया के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं 25 से. क्वेश्चन नंबर 25. मैं आपको सेट करता हूं.
चला गया था, मैं यहाँ चला गया था, मैं वहां चला गया था, नमाज का टाइम नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 26 सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है? अब आ रही है भाई? जी सर अब आ रही है। मोबाइल भी काम नहीं कर रहा, आप तो इसी से गुजारिश करना पड़ेगा हमें, इसी पे Zoom पे, तो मैं उसी पे लगा हुआ था और नहीं हो रहा है। Exercise एक टाइम टेबल था जिसमें लिंक भी सब दिया हुआ था हर क्लास में। 84 अच्छा हाँ वो पीडीएफ से भी देख सकते हैं। Question number 26 This is the figure. गूगल क्लासरूम कब टूट गया था? ये टर्म है हमारे पास, ये टर्म है हमारे पास, इसकी इक्वेशन है y इंग्लिश equal to की x 4 minus x square.
-2, ये -2 है वेस्ट और ये 2 है। क्या नाम है हमारा? मोहम्मद उस्मान। We have to find the area between the curve and the x-axis. ये हमने एरिया निकालना है, ये फिगर हमें गिवन है और उसकी इक्वेशन भी गिवन है। तो मैं अभी मैं उसे एक्सेप्ट उसकी करूंगा। इक्वेशन भी गिवन है, तो फिगर गिवन है तो हमें ये पता चल रहा है फिगर से कि ये कर्व जो है इसको -2 को भी क्रॉस कर रहा है, 2 को भी क्रॉस कर रहा है और 0 को भी क्रॉस कर रहा है। वो रिकॉर्डिंग लगाई हुई होगी तो हाँ सुन सकते हैं। इसको -2 पे भी क्रॉस कर रहा है, इसका नाम 0 पे भी क्रॉस कर रहा है और 2 पे भी क्रॉस कर रहा है। तो हम ये एरिया -2 से 0 तक का लेंगे और फिर 0 से 2 तक का ले लेंगे, दोनों एरिया को ऐड कर लेंगे तो we will get the total area. We will get the total area. तो क्या इसको हम A1 सपोज कर लेंगे एरिया को, दिस इज A1 और इसको A2 ले लेंगे। A1 और A2 एरिया फाइंड आउट करेंगे और इनको ऐड कर लेंगे तो we will get the total area. ये हमारे पास x √4 माइनस x स्क्वायर, तो ये हम इसको एरिया A1 पहले निकालते हैं। तुम्हारी न्यूज़ में बढ़ा रही है माइनस से 2 0 तक, -2 से 0 तक का ये एरिया A1 फाइंड आउट करते हैं। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे। भाई अपना माइक बंद कर लो यार। 4 माइनस x स्क्वायर -2 to 0 with respect to x। पर जो है अगर मुझसे कोई सवाल पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते -2 to 0, -2 से 0 तक का एरिया निकालेंगे और ये एरिया को मॉड कर देते हैं ताकि ये नेगेटिव होगा, लेकिन हम इसको मॉड कर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड लगा देंगे तो इट विल बी द पॉजिटिव एरिया। सानिया करीम ये हम इसका मॉड लगा देंगे, -2 से 0 तक का एरिया निकालेंगे, उसका मॉड लगा देंगे। एरिया हमेशा पॉजिटिव लेंगे ना, एरिया ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसका एरिया निकालेंगे, उसका मॉड लगा देंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, उसको भी मॉड लगा देंगे और दोनों को कैलकुलेट ऐड कर देंगे तो विल गेट द टोटल एरिया अंडर द कर्व एट द x axis of -4 to 2 between the curve and the x axis from -2 to 2। तो 0 को भी क्रॉस कर रहा है तो -2 से 0 तक का ले लेंगे और फिर 0 से 2 तक का एरिया ले लेंगे। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, x √4 माइनस x स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे भाई? इसको हम सपोज कर लेंगे 4 माइनस x स्क्वायर को, 4 माइनस x स्क्वायर को क्या सपोज कर लेंगे? u। हम इसको इंटीग्रेट करके 4 माइनस x √4 माइनस x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाद में लिमिट लगाएंगे। उसको जरा गौर से देखिएगा कैसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। x 4 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 मैंने कर दिया। अंडर रूट की जगह 4 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट की जगह मैंने क्या कर दिया?
पावर 1/2। तो ये हो गया x इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं। इसको मैं यूं सपोज कर लूंगा ये इनसाइड है दैट u इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जो इनसाइड है पूरे को नहीं, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको यू सपोज कर लेंगे, उसको यू सपोज कर लेंगे। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, du अपॉन dx। इसको आपने यू सपोज कर लिया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का जो होल पावर के अंदर है उसको यू सपोज कर लिया और उसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया। तो du अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x। dx को आप उस पर ले रहे हैं, माइनस 2 को नीचे ले आए, तो du विल बिकम du अपॉन माइनस 2, ये माइनस 2 नीचे आ जाएगा और ये dx उस तरफ चला जाएगा, x dx। तो ये यहां पर क्या हो गया, इसको पहले u सपोज किया, उसका डिफरेंशिएट किया, du अपॉन dx, ये आ गया 4 का 0 आ गया और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x आ गया। आप dx को उस तक ले गए और माइनस 2 को नीचे ले आए, तो du अपॉन माइनस 2 x इंटू dx हो गया, ताकि यहां वैल्यू पुट कर सके, इसलिए हमने उसको उस तरफ ले गए। आप दैट विल बिकम इंटीग्रल x 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 dx। आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह u रेज़ टू पावर 1/2 हो गया। इसकी जगह u सपोज कर दिया, u की पावर 1/2 हो गया और x dx की जगह पर हमने du अपॉन माइनस 2। ये x dx जो बचा, x इंटू dx, वो उसकी जगह du अपॉन माइनस 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये माइनस 2 जो है ये कांस्टेंट है, 1 अपॉन माइनस 2, इसको मैं बाहर ले आऊंगा